a state of the science. Will that also affect his forthcoming films which he's working on currently right now? Sorry? The movies he's working right now, will that also have an effect on that? Yeah, non-commercial means any it's huge. All his work, including ad films, everything, every genre of the work. Because the technicians are the same, the workers are the same, the vendors are the same, the management suppliers are the same, the vendors are the same. Like basic technical जो craft है, वो तो workers तो same है, technicians तो same है. But what is Farhan's demand? Does he just want the payment to be done, or there is more to it? No, it's only the monetary. 45 crores which were invested by the company. It's all is accounted, all is audited, and they have told him that this is what we have spent. You check, you audit, you see, and if you feel there's something wrong, they're ready to accept it. So here, what we try to also offer, the producer bodies, the federation, Farhan, Ranveerji, Ritesh, we are all ready to sit together and come to a conclusion, a proper, positive conclusion, so that this is sorted out, the film begins and nobody is at loss or something like that. कोई रास्ता निकलना चाहिए. एक मिनट मैं आप लोग के माध्यम से एक ही चीज कहूँगा कि इंडस्ट्री बैठी है यहाँ पे, प्रोड्यूसर हो, फेडरेशन हो, वर्कर हो, टेक्नीशियंस हो, फिल्म बनाने के पहले उसके जो भी शुरुआत होती है, सेटिंग वर्कर्स हमारे संजू श्रीवास्तव जी, गंगेश्वर श्रीवास्तव जो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है, जिनके अकेले 50,000 मेंबर है, जो बड़े बड़े सेट कंस्ट्रक्शन आप देखते हैं, वो अभी आपसे कुछ कहेंगे. बोल रहा है कि हम सभी फेडरेशन ने अपने तरीके से उन्हें बुला करके, जरूरी नहीं कि उनका एक पक्ष हमने सुने, उनका भी पक्ष सुनने के लिए हम लोगों ने बुलाया कि सामने क्लियर होगी कि गलतियाँ क्या, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमें लग रहा है कि वही गलत है, इसके डिसीजन पे चले हैं और हम उनको काम रोकने के लिए नहीं करेंगे, उनको हम काम नहीं करने देंगे. हमारे जो क्राफ्ट के लोग हैं उनको हम उनके साथ काम नहीं करेंगे. अगर उनको लगता है कि उनकी टीम पूरी अकेली इंडस्ट्री में लेके काम कर सकते हैं, कैमरामैन, डायरेक्टर, कारपेंटर, लाइटमैन, तो कर सकते हैं. और कोई भी कारपेंटर, स्पोर्ट बॉय वहाँ पे सेट पे, मैं राइट मजदूर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, बता देता तो कोई भी सेट उनका किसी भी कीमत से हम लोग नहीं करेंगे. उनको जहाँ पे भी वो रहेंगे, हमारे कारपेंटर लोग वहाँ उनके साथ काम नहीं करेंगे जब तक ये डिसीजन बैठ करके मैटर सेटलमेंट नहीं होगा. Doing now, but nobody is doing it. Why should we talk to him? Why should he talk to him? Does he know It is his risk. Today we'll come to know today. In fact, this is, we are trying to appeal to all the producers. But tomorrow if you are going ahead with your work, you will be responsible for your losses. We will not be responsible for it. Correct. हमने अपना काम कर दिया. उनको अगर उनको मिलता है काम करने के लिए दे गो हेड. मतलब नॉन मेंबर कहाँ पे काम कर सकते हैं, जूनियर आर्टिस्ट कर सकते हैं, डांसर कर सकते हैं, जो टेक्निकल चीज़ें वो नहीं कर सकते. कारपेंटर आके सेट नहीं लगा सकता, लाइट मैन कहीं से भी पकड़ के शूटिंग नहीं कर सकते, डायरेक्टर कोई कैमरा चलाने वालों को लाके बोलेंगे डायरेक्टर काम करो तो नहीं कर पाएंगे. And you can't work in this kind of an atmosphere. There is so much of negativity. There is so much of technicians not wanting, and nobody will take a risk. No, none of it, because ये जो बैठे हुए हैं, संजू जी, तिवारी जी and अशोक जी, they are literally power structures in a very positive way in the industry. Their one voice really matters in the industry. All the ground level people who matter, that's all the vendors, the light suppliers, the LED suppliers, everything, costume, everything. It's in their control, and nobody see. Even a technician when he's told that this is what has happened, when their colleagues have been taken out of their work for 1 year, nobody will work. It's not possible, and the producers are going to support it. It's all the entire fraternity of this industry is going to
think now seriously because we have taken stands. This stand should have been taken by producer bodies also. But we, because we it really matters as far as our work is concerned, as far as our day-to-day things are concerned. Nearly 4.5 lakh, 5 lakh technicians and workers work in the industry. It's not only actors, So it had become our, we thought it's our responsibility to see to it that this thing comes to a particular end and solution for that. That's why we have taken this aggressive stand. अशोक जी एक सवाल है मैं एक चीज बता दूँ आपको कि ये फिल्म इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए, उसके हित के लिए किया जा रहा है, किसी पर्सन के लिए नहीं कर रहे हैं हम, किसी एक आदमी के लिए नहीं, न किसी प्रोड्यूसर के लिए कर रहे हैं, न किसी डायरेक्टर के लिए कर रहे हैं, मगर फिल्म इंडस्ट्री का हित कैसे होगा, इस तरह के प्रॉब्लम होते रहे तो फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, इसके लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो हमारे लिए चाहे वो प्रोड्यूसर है या स्पॉट बॉय है, मेरे लिए बराबर है, उसके सबके हित की बात हम करने आए हैं यहाँ पर, किसी एक आदमी के हित की बात। अशोक जी मेरा एक सवाल है कि अगर मैंने गलत नहीं सुना है तो आप लोगों ने बताया कि 3 बार आप लोगों ने उन्हें लेटर भेजा और वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करने जा रहे हैं तो शनिवार को शायद उन्होंने रिप्लाई किया और कहा कि आप लोगों की अथॉरिटी नहीं है। क्या उन्होंने आगे मिलने की मंशा जताई है कि आगे मिलेंगे, बात करते हैं, ऐसी कोई मंशा जताई? एक मेल आया उनका कि उनके सेक्रेटरी का कि हम मिलना चाह रहे हैं, लेकिन हमने बहुत क्लियरली कहा है कि हम किसी सेक्रेटरी या किसी ऑफिस के आदमी से मिलेंगे, हम पर्सनली मिलेंगे, हम पर्सनली जो रिकॉर्ड है इसमें उनसे मिलेंगे। उनको बहुत क्लियर है कि फरहान अख्तर विदेश दोनों प्रेजेंट थे हमारी मीटिंग में। तो सेक्रेटरीज और रिप्रेजेंटेशन जो 1-to-1 हम नहीं कर सकते, हम बहुत क्लियर है, तब जाकर सोल्यूशन निकलेगा। किसी लॉयर के थ्रू, इसके थ्रू वो सब बात नहीं। हम आप आइए, आप भी हमारे इंडस्ट्री के हिस्से हैं, कोई आसमान से तो नहीं आया, सब यहीं से आए हैं। We are respected person, we are all family, and we are all बहुत रिस्पेक्ट करते and he is a person who is responsible for getting people to the theatres. So he is a very important person from the industry. So there is a lot of respect towards him. Let us understand that we are all part of the industry, we are also aware of his stardom. We all respect that. हम सबने celebrate किया उसके मतलब success को. We are still celebrating it. But the point is there has to be something which accountability. क्या है, आज ये एक प्रोड्यूसर के साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा। ये जो ट्रेंड चल रहा है इसको खत्म करना चाहिए और बैठ के एक टेबल पे आकर रणवीर को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई इंडस्ट्री है तो सब है, तो बैठ के ये आपस में बैठ के ये सोल्यूशन निकालना चाहिए। Tomorrow, if he would have come, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लगता है कि ये गलत है तो he would have come to that level ना, because he cannot be biased. मतलब आप आके बैठिए, सब बैठने को तैयार हैं और इसका सोल्यूशन निकलेगा। कल फरहान और नितेश को लगे कि चलो 45 मिनट कुछ अमाउंट पे जो भी डिस्कशन करना है, ये साथ में बैठ के ही सोल्यूशन होगा। You cannot take a stance of being totally aloof from the industry. That's not possible and that's not done. Because industry जो है वो bonding है, there's a lot of respect towards each other. तो उस रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए फेडरेशन जो है उसको आगे बढ़ाना चाहती है। एंड हम अपील भी कर रहे हैं, जो हमने कहा उसने भी कहा कि सारा प्रोड्यूसर बॉडीज इनफा, IPDC, गिल्ड, विपा, जितने भी हैं सब मिलके, जितने भी लोगों ने पहले कोशिशें की, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे सिद्धार्थ राय कपूर हो, चाहे वो शिवजी सरकार हो, चाहे जितने भी लोगों ने कोशिश की, वो सब बैठे और सोल्यूशन पे, ताकि ये जो ट्रेंड है अगली बार कोई भी ऐसा करने जाए तो 10 बार सोचे कि भैया ये पॉसिबल नहीं है। इंडस्ट्री साथ में मिलके ही काम कर सकती है, तभी जाके जॉब चलेगी। इंडिविजुअल इंडस्ट्री को नहीं चला सकता, पॉसिबल नहीं है। 5 लाख वर्कर्स, टेक्नीशियन भी इतने इंपॉर्टेंट है जितने की एक्टर्स है, स्टार्स है, जितने के प्रोड्यूसर, जितने के डायरेक्टर है। अशोक जी, जैसे आपने कहा, ये जो आपने स्टेप लिया है, is it the step that the federation is taking on its own, or is it based on a complaint from Farhan and production? कंप्लेंट आया, फरहान का कंप्लेंट आया, we met both of them. They came personally 2 घंटा बैठ के उन्होंने पूरी नरेट की। They narrated the entire thing. They brought all the documents. We have all the documents. They showed us the expenses. They showed us the audit report.
They showed us everything. That's why we have come to this country. So everything is there on paper. Nothing is hearsay. Everything is on paper. The tickets which were booked for the entire unit of more than 200 people going abroad to shoot, everything was there. Costumes के bills हमने देखी है, location booking देखी है, hotel booking देखी है. Everything is there on paper. अशोक सर, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी मुलाकातें हुई और अलग-अलग लोगों ने इंडस्ट्री से इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई. आपके पास जिस तरह से जितना आप बता रहे हैं कि फरहान खुद आए, उन्होंने अपनी सारी जो भी सबूत वगैरह रख सकते थे, अपने हिस्से की ईमानदारी उन्होंने दिखाई. क्या आप ये मानते हैं कि ईमानदारी की हॉनेस्टी की बात करी जाए, क्योंकि वो फ्रंट पे आके खेल रहे हैं, चाहे वो आमिर खान साहब हो, चाहे वो फेडरेशन हो, आप सबको अप्रोच कर रहे हैं, उतने ईमानदार रणवीर सिंह नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए. नहीं, हम किसी के पास पर्सनल एस्पिरेशन नहीं कास्ट करेंगे. हम उतनी ही इज्जत उसकी करते हैं जितनी बाकी लोग की करते हैं. वो हमारी इंडस्ट्री का आइकन है. हम ये शुरू से कह रहे हैं दोस्त कि आप मिलिए, आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करने की इसी फोरम में, इसी फैमिली में बैंक आपके पास है ऑल्टरनेटिव. हम नहीं कहते ऑल्टरनेटिव, लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है सब साथ में बैठकर. अल्टीमेटली दोस्त इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, आपको नीलों के साथ काम कर रहे हैं. आपको आपने 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उनके साथ, एक नहीं है. आपने उसका ट्रेलर शूट किया, ट्रेलर तो फिल्म आप कर रहे हैं तभी आपने ट्रेलर शूट किया ना. सो हम अपील कर रहे हैं एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ द इंडस्ट्री. हम खाली अपील कर रहे हैं बहुत प्यार से कि आइए साथ में बैठिए और इसका निचोड़ लेके आइए, इसका सोल्यूशन लाइए. और ये जो ट्रेंड है, अगर आज इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो इंडस्ट्री फंक्शन नहीं कर पाएगी. फिर तो ये हर रोज आपको सुनना पड़ेगा कि लोगों ने ये तो सारा एक्सेल है, 45 करोड़ का जो इनका जो इन्वेस्टमेंट है ये झेल रहे हैं. दूसरा मुद्दा तो सुसाइड कर लिया था उसने, क्या करते करता है. अशोक सर, 3 फिल्में बता सकते हैं कि इस पे डॉन के अलावा कौन 2 फिल्म नहीं मुझे बताया उन्होंने. इससे पहले बहुत सारा कुछ हुआ होगा, मगर जो हमारे तक पहुंचेगा मैं उस पर स्टेप जरूर दूंगा. Has he walked out of all 3 films or just Yeah, has he walked out of all the 3 films or it's only Don that he has done now? I'm not sure.